Hello everyone, my name is Devanshi, one of the family member of British Academy PGB. So I just want to share my experience with the British Academy, which is very helpful in my life currently, which is my profession, and I am currently working as a customer care associate, and which you have provided all the details regarding the communication and regarding the personalities, which is very helpful in my life because I am working verbally. I'm not talking to anyone visually that you can listen my words, you can see my expression. I always talk to someone on calls. So I have to convince the customer why my voice expression, which so has provided that how can we use the verbal communication as our power. It's also a power that you can convince someone by speaking. And British Academy doesn't only provide spoken English, it's enhance your personality, it's boost of your confidence. It provides that platform that you can share your thoughts and views, and you can share your ideas everywhere. Great platform, and which is providing you very helpful in your professional life in future. If you are a student, if you are professional, it's a great moment of your life that you can enhance or boost up yourself. And every school, every institute can provide you all the material, right? But British Academy is the only place which polish you. They don't make you learn anything, they polish you, that you have that knowledge, you have experiences, but how you can boost up yourself. This is the British Academy. It's right, it's correct, and I am experienced right now, which is very helpful. And at the conclusion, I would like to thank all the faculty members, especially Khan sir, that who have taught me a lot in the class, in the office, in the training session also. I have experienced lots of things with British Academy, and it was a great experience. Thank you so much. Hello everyone, my name is Akash Sharma and I'm the student of British Academy Pilibhit situated nearby Nai Basti Choraha. And now today I'm giving my views over the topic personality development and communication skills. So let me tell you what is personality. So personality, the word persona is derived from the Latin language persona, which means mask. So I think yeah, personality is just like a mask we show to the whole world. Okay, and personality refers to two things like inward traits and outward traits. In outward traits, we show our gesture, posture, and body language to the people, and there is a quote: "First impression is the last impression." That is only that people will judge you by your what is your body language and the what is the way of talking, what's the gesture you are using. So I think yeah, it is very important to maintain your gesture and body language to fit anywhere. After that, the inward traits is in which like behavior, your thought process, your attitude, your patience, and some politeness, what your communication skills are. So I think yeah, I think patience is very important to deal with any situation, and talking politely to someone, I think it's a very good deal and it's a good option to enhance your personality. And in communication skill, it is a best way to enhance your personality. If you have good communication skills, so you can achieve success. Communication skills nowadays, it is very important. Every person must have a good communication skills to get success in their path and to deal with people. So that's all about the topic. Thank you for listening me. Good morning, everyone. British Academy is the best platform to learn English, and from my opinion, it is the best institute in the world. If I talk about my ambition, so my ambition is to become defense officer from ND exam 10. So first of all, good morning to everyone. My name is Apu Sharma. I am studying in British Academy. It is situated nearby Nai Basti Chauraya. So my topic is importance of English. English is a global language. If you are going to abroad, so there is only one language, English. It helps you to communicate people. So in India, there is also many opportunity in interviews in UPSC interviews. There is also a English interview, so it is also important in interviews. And if you are communicating, so it is also help if you are using good vocabs and good um, English words. So so
enhance your English communication skills, you should join British Academy. Thank you for listening. Have a nice day. तो सर जी आप बताइए फिर कैसे अगर कोई मिलना चाहता है आपसे तो वो कैसे आपसे मुलाकात कर सकता है, कहाँ पर, जैसे किसी को बैच सेलेक्ट करना है तो क्या ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाएगा या फिर फिजिकली विजिट करना होता है, कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ जरूर सर, देखिए ऑनलाइन जो है आप जानकारी ले सकते हैं लेकिन वो इतना इफेक्टफुल नहीं होता है। तो अगर बेटर रहेगा आप हमारे ऑफिस में विजिट करें, जो कि आपको बताया गया है कि अपना जो ऑफिस है पीलीभीत में वो नई बस्ती चौराहे पर है, गोदान हॉस्पिटल के ऑपोजिट में। तो आप एक बार यहाँ पर जानकारी लेने के लिए आए, तो यहाँ पर हम लोग के कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है, क्लास की ड्यूरेशन क्या होती है, कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। बेस्ट टाइमिंग आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल रहेगा, और उसके साथ साथ अलग अलग लोगों की अलग अलग परेशानियां भी होती है। किसी को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, किसी को लिखने में होती है, किसी को बोलने में होती है, सुनने समझने में होती है। तो हम लोग ऑफिस में बैठकर इसके बारे में जो है डिस्कशन भी करेंगे कि आपको किस तरह से हम लोग ट्रीट करेंगे। किस तो ये तरह सारी से जी जी रिज्यूम नहीं करेंगे बल्कि आप देखेंगे कि किसको कहाँ से लेकर के चलना है, जी क्या जी उसके लिए जरूरी है, जरूरी है। क्या एक्स्ट्रा क्लास लेना है उनको या फिर मेन क्लास में डायरेक्ट जाना है, रीडिंग राइटिंग कैसा है उनका। जी जी जरूर। अगर रीडिंग राइटिंग किसी को अच्छे से नहीं आता है तो उसमें देखिए आपकी बेसिक क्लासेस भी होते हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा क्लास मिलता है, जिसमें आपको रीडिंग करवाते हैं। रीडिंग राइटिंग करवाते हैं। पहले रीडिंग राइटिंग मतलब कैप्टन बनाते हैं कि रीड कर ले और राइट कर ले, उसके बाद फिर आपको जो है लिसनिंग और स्पीकिंग होगा। तो बेटर रहेगा आप एक बार फिजिकली विजिट करें यहाँ पर, और डेफिनेटली इट विल बी अ नाइस एक्सपीरियंस। मैं अंशिका से पूछना चाहूंगा, अंशिका मैम से आप कुछ बताइए, क्या हाउस वाइफ्स आ सकती है यहाँ पर? यस सर, बिल्कुल हाउस वाइफ भी आ सकती है। और जैसे कुछ लोग होते हैं उन्हें लगता है हमें एज के अकॉर्डिंग वो सीखना चाहते हैं, बट उन्हें कंफर्टेबल नहीं होता कि हम किस तरीके से सीख सकते हैं, बच्चों के साथ पढ़ते हैं। बट हमारे यहाँ पर एक ऐसा एटमोसफियर दिया जाता है जिसमें उन्हें किसी भी तरीके की हेजिटेशन नहीं होती है, उनका एज लिमिट नहीं देखा जाता है, वो कौन सी कम्युनिटी से आ रही है, ये सब कुछ नहीं देखा जाता है। हमारे यहाँ पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कि आप कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। हम जस्ट फोकस करते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट है और क्या सीखना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास कराई जाती है, जिसमें आपको बस आपका इंटरेस्ट देखते हैं और आपको क्या सीखना है वो सब चीजें सिखाई जाती है। इसमें आपको एज और या फिर आप कहाँ से आती है सब कुछ नहीं देखा जाता, बस आप फोकस करा जाता है कि आपको मतलब किस कोई तरीके से। एज बैन नहीं है, जी सर। एजुकेशन बैन नहीं है, यस सर। है ना, कोई भी बैन नहीं है, कोई भी आकर के सीख जी सकता सर, है। बिल्कुल सही बात भी है, एज किसी भी एज ग्रुप का हो, है ना, और कहीं से भी कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा हो, तो इनको तो इंग्लिश बोलना सिखाना जी है। सर, हमें सिखाना होता है। हम बस ये देखते हैं कि हाँ आप सीखना चाहते हैं या नहीं, बस ये इंटरेस्ट होना चाहिए। बाकी सब चीजें हमारे यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई जाती है। अच्छा, सुबह से शाम तक आप लोग क्लासेस कराते रहते जी हैं सर। अलग-अलग स्टूडेंट्स हाँ के? जी सर, हमारे मॉर्निंग में सर जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो मॉर्निंग में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ इवनिंग में कंफर्टेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेड्यूल। सो वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे किसी भी टाइम पे आ सकते हैं। यहाँ पे 4 बैच प्रोवाइड कराए जाते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम। जैसे मैंने जिक्र किया अभी हाउस वाइफ का, तो हाउस वाइफ चाहे वो प्रोफेशनल नहीं है ना, स्टडी नहीं कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगर देखा जाए आज के दौर में उनको जरूरत है। यस सर, जरूरत है, उनके बच्चे जो है वो स्टडी कर रहे हैं, उनका होमवर्क कराना है, नहीं तो फिर ट्यूशन लगवाना है, ट्यूशन वाले भी फिर होमवर्क दे देते हैं, तो फिर घूम फिर करके मम्मी पे ही आ जाता है। ये सर जरूरी नहीं है कि इंग्लिश की जरूरत हमें पढ़ाई में ही हो या किसी जॉब में ही हो, हमें अपनी डेली लाइफ में सर्वाइव करने के लिए भी इंग्लिश की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर हमें नॉर्मली भी इंग्लिश नहीं आती, हम किचन में ही काम कर रहे हैं, तो हम कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसमें कौन कौन से स्टेप यूज करे गए हैं। अगर हमें यही नहीं पता कि एक्सपायर है या फिर यस सर, हमें वो सब चीजें कि हमारे लिए सुटेबल है और नहीं, इस सब चीजों के लिए हमें इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इंग्लिश का जो है अगर देखा जाए, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इफेक्टिव भी बनाती है, लोगों को स्मार्ट भी बनाती है ना। तो देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज हमारी पर्सनैलिटी को भी ग्रूम करती है, तो इंग्लिश की जरूरत है। और जरूरत के साथ साथ मुझे लगता है आजकल इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो फैशन भी है, कि अगर आप कहीं किसी से इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो पीपल आर टेकिंग यू इन अ डिफरेंट वे, they are going to pay you respect. What I think, yeah, we can like easily attract someone by speaking English. by speaking English. Yes, हाँ बिल्कुल, नॉर्थ इंडिया में अगर आप अंग्रेजी किसी से बोलते हैं तो लोग आपको जो है वो काबिल कोई हो या ना हो, लेकिन लोग समझते हैं कि यार ये एजुकेटेड बच्चा है, एजुकेटेड बंदा है, पढ़ा लिखा है, काबिल इंसान है। तो इंग्लिश जो है वो एक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश बोलना अगर आपकी तारीफ करवा दे और आपको काबिल साबित कर दे लोगों के सामने, तो मैं समझते ये आसान सी लैंग्वेज
सभी लोगों को जो है वो सीखना चाहिए। मैं ब्रिटिश एकेडमी पीलीभीत ब्रांच के लोगों की तरफ से जगमोहन सर है, शिखा मैम है, नेहा मैम है ना, और इमरान सर है, उन सब के बिहार पर बोलना चाहूंगा कि भाई आसपास के जितने भी लोग हों, वो चाहे कोटा के हों, देवरिया के हों, बरखेड़ा के हों, जहानाबाद के हों, गजरौला के हों, माला के हों, मझोला के हों, अमरिया के हों, आसपास के जितने भी लोग हैं, इस रेप्यूटेड ब्रांड ब्रिटिश एकेडमी इंस्टीट्यूट में उनको जरूर आना चाहिए। और उनकी एज कुछ भी हो, उनकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, ऐसे ब्रिटिश एकेडमी जैसे इंस्टीट्यूट में अंग्रेजी बोलना जरूर सीखना चाहिए। ये मैं मैसेज करना चाहूंगा। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, जैसा कि आप लोगों ने बताया है, जैसा कि बताया गया है कि लगभग 16 इयर्स और 15 to 16 इयर्स हो रहे हैं, मैम ने बताया है ना, 16 इयर्स अप्रोक्सीमेटली होने वाले हैं ब्रिटिश एकेडमी को, और 15-16 साल मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, यहाँ पर जो है वो सैकड़ों ने नहीं, हजारों लोगों ने अंग्रेजी सीखी है। वो कहते हैं कि हजारों लोग सीख चुके हैं, अब आपकी बारी है। तो जो इस वीडियो को देखे, उसके आसपास जो भी ब्रिटिश एकेडमी की ब्रांच हो, जिस शहर में भी, मैं आई थिंक कि जैसे जैसे मैंने ब्रिटिश एकेडमी की अदर ब्रांचेस भी विजिट की हैं, मुझे लगता कि जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्टाफ है, उनका नेचर, बिहेवियर है, या जो मेथड ऑफ टीचिंग है, जो सर्विंग वे है, या जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उन लोगों से मिला हूँ, सब कुछ सेम है। तो आई वुड लाइक टू कन्वे मैसेज टू द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया, स्पेशली इन यूपी एंड उत्तराखंड, कि आपके आसपास 10-20-30 किलोमीटर पर या आपके शहर में अगर ब्रिटिश एकेडमी जैसा इंस्टीट्यूट है, तो आपको फिर देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से जाइए और वहां पर अपना एडमिशन लेकर के आप फ्लॉलेस एंड फ्लुएंट स्पीकर इंग्लिश लैंग्वेज के बन सकते हैं। जल्दी से बनिए एंड इम्प्रेस द पीपल बाय स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज।